جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کرناٹک کے وفد نے شہداء کے اہل خانہ سے کی ملاقات۔ کانگریس کی عبوری صدر بنی رہیں گی سونیا گاندھی، 6 ماہ میں منتخب کیا جائے گا نیا صدر۔ تبلیغی جماعت معاملے میں ملک کو گمراہ کرنے والے میڈیا فوراً معافی مانگی۔ وارانسی BHU اسپتال میں داخل کورونا پازیٹو 21 سالہ نوجوان نے کی خودکشی۔ فرار قیدی کی مدد کرنے والے 5 سپاہی ہوئے برخاست۔ بیوی کے افیئر سے پریشان نوجوان نے اٹھایا خطرناک قدم، فیس بک لائیو پر آ کر کیا یہ کام۔ کورونا وبا کی وجہ سے مدارس کا نظام تعلیم برہم درہم برہم، مدارس و دارالقامے ہوئے سنسان۔ جمعیت علماء ہند کی تبلیغی جماعت کے خلاف دائر مقدمات واپس لینے کی وکالت۔ پولیس نے کیرلا BJP صدر سریندرن کو گرفتار کر لیا۔ اتر پردیش گینگسٹر کی مدد کرنے والے 5 پولیس اہلکار ہوئے برخاست۔ نیتنیاہو کے خلاف اسرائیل میں زبردست مظاہرے، 30 مظاہرین ہوئے گرفتار۔ گزشتہ ماہ جوہری تنصیب میں دھماکہ تخریب کاری تھا، یہ ایران کا بیان۔ ترک صدر کا کورونا قلبی سلام پوری دنیا میں مقبول عام۔ افغانستان میں طالبان کا کار بم حملہ، 3 افراد ہوئے ہلاک۔ کم جونگ ان کوما میں ہیں، میڈیا کا دعویٰ۔ اور رئیس کی سرگرمیوں میں 27 اگست تک توسیع کر دی گئی۔ یمن سرکاری فوج اور حوثیوں کے درمیان جھڑپ، 5 باغی ہلاک۔ اسرائیلی جنگی طیاروں کی کارروائی، حماس کے بعض ٹھکانے ہو گئے تباہ اور جاری ہے قاتلوں کی قتل۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر کی اہم ترین عالم بھر سے آئی ہوئی خبریں لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہوئے ہیں، جس میں ہمیشہ کی طرح الگ الگ خبروں پر تنقیدی تبصرے ہوئے ہیں، وائرل ویڈیوز دکھائے گئے ہیں۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں، ادارے کو مضبوط کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ناظرین آج کی پہلی خبر ہے بنگلورو سے۔ 11 اگست کی رات پیش آئے تشدد کے واقعے نے ریاست کے مسلم سماج کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ تشدد پر قابو پانے کے لیے کی گئی پولیس فائرنگ میں 4 نوجوانوں کے شہید ہونے کی خبریں آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ ان 4 نوجوانوں کا تعلق غریب اور مزدور طبقے سے ہونے کے ساتھ ساتھ جن بے قصوروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے ان کا بھی تعلق بہت ہی غریب گھرانوں سے ہے۔ ایسے حالات میں اہل خانہ بہت ہی مجبور ہیں، پریشان ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کرناٹک مسلم متحدہ محاذ کے تحت علماء اکرام اور ذیلی تنظیموں کے نمائندوں نے حال ہی میں DJ ہلّی اور KG ہلّی میں موجود متاثرین کے گھروں کا دورہ کیا تھا اور ان کو دلاسا دیتے ہوئے ان کی کہانی سنی تھی، ان کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوا اس کو بھی سنا تھا، جس میں مولانا مقصود عمران رشادی صاحب، مولانا وحید الدین، مولانا زین العابدین، ڈاکٹر سعد بیلگامی کے علاوہ بہت سارے اہم ترین الگ الگ تنظیموں سے وابستہ کئی لیڈران اور کئی سربراہ، کئی سربراہ آوردہ افراد موجود تھے۔ انہوں نے دلاسا بھی دیا اور ان لوگوں کو جتنا ممکن ہو سکے الگ الگ تنظیموں کی جانب سے ماہانہ راشن کے اعتبار سے ہو یا دیگر جو کوئی بھی ہو، تعلیمی سطح کی جو بھی پریشانیاں ہیں اس کو دور کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا اور اس سلسلے میں جاری بھی ہے۔ اب کرناٹک کے اہل سنت والجماعت کے ایک تنظیم نے بھی آج ان لوگوں سے ملاقات کی اور ان کو دلاسا دینے کے ساتھ ساتھ جو ہے ان لوگوں کی زخموں پر مرہم رکھا اور ریاست کرناٹک کے معروف عالم دین مولانا سید محمد تنویر پیرا ہاشمی کی قیادت میں جماعت اہل سنت کرناٹک کے وفد نے ان گھروں کا دورہ کرتے ہوئے ان کو بہت سارا دلاسا بھی دیا اور اس کے علاوہ جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین آمیز پوسٹ کی ہیں ان کے خلاف سخت مذمت کرتے ہوئے قانونی کارروائی کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے اور پولیس فائرنگ میں شہید ہونے والے 4 نوجوانوں کے رشتہ داروں سے ملاقات کرنے کے بعد متاثرہ فی خاندان کو 50,000 روپے مالی مدد بطور چیک فراہم بھی کیا۔ مولانا محمد تنویر پیرا ہاشمی کے ساتھ ساتھ جو ہے جناب عثمان شریف صاحب اور بہت سارے لوگ موجود تھے جو اس وقت اس دورے میں شامل تھے۔
नाज़रीन आइए अब बात करते हैं ओडिशा के एक यूथ वॉलंटियर वर्क व आल इंडिया मिली उलमा बोर्ड की जानिब से किए जा रहे फलाही वर्क का। यहाँ पर 4 यंगल व बाली चंद्रपुर व दीगर अतराफ़ में 8 ऐसे तलबा जो स्कूल में नुमायाँ तौर पर कामयाबी हासिल की थी, उसको मुतअल्लिक़ा तंजीमों की जानिब से वजीफ़े लिफाफे की शक्ल में दिए गए हैं और कुछ एजाज़ी सनद भी दिए गए हैं। ऐसे में उन लोगों का सिलसिला दानिश्वरों के हाथों में और प्राइज़ भी नवाजे जाने की ये सिलसिला जारी रहा। इस तहरीक के रुहरवा मोहम्मद उवैस नौमान ने अपनी जानिब से और पूरी तंजीम की जानिब से उन तमाम तालिब इल्मों की दिल की गहराइयों से खुलूस मुबारकबादी पेश की है जिन्होंने स्कूल की इस तालीम में नुमायाँ तौर पर कामयाबी हासिल की है। इसी के साथ साथ मुतअल्लिक़ा इस तंजीम ने एक उम्र रसीदा शख्स जिनकी उम्र तकरीबन 100 साल है, नीलामानी सामल, बहुत कम ही लोग जानते थे कि उन्होंने जंग आज़ादी में हिस्सा लिया था और उनके आंदोलन में हिस्सा लिया था। इसी का एतराफ़ करते हुए उनको भी मुतअल्लिक़ा इस तंजीम की जानिब से एजाज़ से नवाजा गया और उनको मेमोरेंडम भी पेश किया गया। नाज़रीन गिरामी आइए बात करते हैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मीटिंग तकरीबन 7 घंटे के बाद ख़त्म हो गई। ज़राए के हवाले से इत्तला मिली है कि मीटिंग में फ़ैसला लिया गया है कि सोनिया गांधी कांग्रेस की उबूरी सदर बनी रहेंगी और अगले 6 माह के अंदर पार्टी को नया सदर मुंतखब करना होगा। नाज़रीन आपको मालूम है कि जैसे ही ये कांग्रेस की आज मीटिंग शुरू हुई उसके बाद अंदरूनी सतह पर जो खदशात थे, जिस तरह की दूरियां और इख्तिलाफात थे, वो निकल कर के सामने आए और शाम ढलते ढलते जो है इसको कांग्रेस की ही जानिब से ख़त्म करने की ये कह कर के कोशिश की गई है कि कांग्रेस के अंदर किसी भी किस्म के इख्तिलाफात नहीं हैं। मुंबई हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच के तबलीगी जमात से मुताल्लिक तमाम एफआईआर को रद्द करने के तारीख़ी फ़ैसले का खैर मकदम करते हुए ह्यूमन चेन के सदर इंजीनियर मोहम्मद असलम अली ने तबलीगी जमात के बारे में मुल्क को गुमराह करने के लिए हुकूमत और मीडिया को फौरी तौर पर माफ़ी मांगते हुए तलाफ़ी के लिए कदम उठाना चाहिए। उन्होंने यहाँ एक जारी बयान में कहा कि औरंगाबाद बेंच ने जिस तरह तबलीगी जमात के ख़िलाफ़ दर्ज एफआईआर को रद्द करते हुए अपने फ़ैसले में हुकूमत और मीडिया को कटहरे में खड़ा किया, वो समाज की आँख खोलने के लिए काफ़ी है कि किस तरह ख़ास ज़हनियत के हामिल लोग अपनी ज़ाती मफाद के लिए माशरती हम आहंगी को दरहम बरहम करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह तबलीगी जमात के सिलसिले में मुसलमानों को निशाना बनाया गया और मुल्क के मीडिया के ज़रिए उन्हें कोरोना फैलाने का ज़िम्मेदार करार दिया गया, उसके लिए मीडिया और हुकूमत को मुसलमान ख़ास तौर पर तबलीगी जमात वालों से माफ़ी मांगनी चाहिए। नाज़रीन उत्तर प्रदेश की ज़िला वाराणसी के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सदर सुंदरलाल अस्पताल में ज़ेर इलाज कोरोना मुतासिर शख्स ने 4थी मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली है। पुलिस ज़राए ने पीर को यहाँ बताया कि दिमागी तौर पर परेशान 21 साल अंकित पाठक ने इतवार की देर रात अस्पताल की 4थी मंजिल से अचानक छलांग लगा दी। हादसे के फ़ौरन बाद उसे यहाँ के ट्रामा सेंटर में दाखिल कराया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। नाज़रीन उत्तर प्रदेश के फ़र्रुखाबाद ज़िले में करीब 1.5 साल पहले पुलिस हिरासत से फ़रार कैदी के मामले में पुलिस ने 5 सिपाहियों को बर्खास्त कर दिया है। पुलिस तर्जुमान ने इतवार को यहाँ बताया कि फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में ज़ेर हिरासत कैदी शातिर माफिया बदन सिंह उर्फ बद्दू को 27 मार्च 2019 को यहाँ एक सरकारी गाड़ी के ज़रिए गाज़ियाबाद की अदालत में पेशी के लिए ले जाया गया था, जिसे लेने का ना कस्टडी में तैनात डिप्टी इंस्पेक्टर वेश राज त्यागी, सिपाही संतोष कुमार, सुनील सिंह, राजकुमार, ओमदेव सिंह और ड्राइवर भूपेंद्र सिंह साथ थे। बिहार के भोजपुर में एक नौजवान ने फेसबुक पर लाइव आने के बाद अपने सर में गोली मारकर के खुदकुशी कर ली है। इस वाक़े के बाद आसपास के इलाकों में हंगामा मच गया है और वाक़े की इत्तला मिलते ही मकामी थाने की पुलिस जाए वारदात पर पहुंच गई है और लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। खुदकुशी का यह वाक़या भोजपुर ज़िले के अद्विंत नगर थाना इलाके के जुनूबी एकरना गाँव में पेश आया है। इतवार की शाम पेश आए इस वाक़े में खुदकुशी से ठीक पहले सोशल मीडिया पर लाइव आकर नौजवान ने अपना एक वीडियो डाला। इस वीडियो में शराब की बोतलें और कई चीज़ें नज़र आ रही थीं। उसके साथ ही वीडियो में ज़मीन पर पड़ा हुआ एक हथियार भी नज़र आ रहा है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि नौजवान ने इसी हथियार से खुद को गोली मारी है। मरने वाले की शनाख्त एकोना गांव के रहने वाले विनोद सिंह के बेटे सुमित सिंह के तौर पर की गई है और ख़ुदकुशी की वजह बीवी के दीगर संबंध बताए जा रहे हैं। कोरोना वबा के सबब लॉकडाउन ने मदारिस के निज़ाम तालीम को दरहम बरहम करके रख दिया है। गुज़िश्ता 22 मार्च को जनता कर्फ्यू, उसके बाद लॉकडाउन से मदारिस में दर्स व तदरीस का सिलसिला बिल्कुल बंद है। दीगर रियासतों की तरह झारखंड के मदारिस में भी निज़ाम तालीम का सिलसिला मुनक़ते हो गया है, बल्कि मुल्क के सारी रियासतों के मदारिस का कुछ ऐसा ही हाल है। रियासत के सैकड़ों मदरसों में कायम दारुल-ए-क़ामा खाली पड़े हुए हैं। इन मदारिस में तालीम हासिल करने वाले सैकड़ों बच्चे लॉकडाउन में अपने घरों में रहने को मजबूर हो चुके हैं।
जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी ने मुंबई हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के जरिए तबलीगी जमात से मुताल्लिक किए गए फैसले का खैर मकदम किया है। उसे उन सरकारों के लिए नसीहत आमेज़ भी करार दिया। महमूद मदनी ने कहा कि जमीयत उलमा हिंद मरकज़ी और रियासती सरकारों से मुतालबा करती है कि तबलीगी जमात के ख़िलाफ़ मुल्क में जहाँ भी मुकदमा दायर है वो बिला ताख़िर वापस लिया जाए और जो लोग जेलों में बंद हैं उनको रिहा किया जाए। बिलखुसूस उत्तर प्रदेश की सरकार को नसीहत हासिल करने की ज़रूरत है, जिसका रवैया इंतहाई गलत और इंतकाम पर मबनी रहा है। आज भी इलाहाबाद की नैनी जेल में तबलीगी जमात के अरकान बंद हैं। केरला असम्बली के बाहर वज़ीर आला पिनराई विजयन के इस्तीफ़े की मांग के सिलसिले में उनके खिलाफ एहतिजाज कर रहे केरला बीजेपी सदर के सुरेंद्रन को पीर के रोज़ गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद केरला बीजेपी सदर ने कहा कि वज़ीर आला के इस्तीफ़ा देने तक बीजेपी अपना एहतिजाज जारी रखेगी। उन्होंने त्रिवेंद्रम बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे की निजकारी मामले पर असम्बली में बीजेपी एमएलए और राजगोपाल को बोलने की इजाज़त न देने के लिए हुकूमत की सख्त मजम्मत की है। इसराइल में वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त एहतिजाजी मुज़ाहिरों की खबरें मौसूल हुई हैं और इन मुज़ाहिरों में हिस्सा लेने की पादाश में 30 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया गया है। मक़बूज़ा बैतुल मक़दिस में हज़ारों अफराद में बिन्यामिन नेतन्याहू के ख़िलाफ़ रैली निकाले, उनकी इस्तीफ़ा का मुतालबा किया है। मुज़ाहिर ने नेतन्याहू के ख़िलाफ़ सख्त नारेबाजी भी की है। नाज़रीन, ईरानी हुकाम का कहना है कि गुज़िश्ता माह अस्फ़हान के करीब वाक़ नज़स जौहरी तंजीब में लगने वाली आग तख़रीबकारी थी, जिसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम तंजीब के एक अहम हिस्से को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। अल आलम टीवी के मुताबिक ईरानी इदारा बराए जौहरी तवानाई के तर्जुमान का कहना है कि गुज़िश्ता माह ईरान की नज़स तंजीब में लगने वाली आग तख़रीबकारी का नतीजा थी। तर्जुमान बहरोज़ कमालवंदी का कहना है कि ईरानी सलामती क़ुव्वतें मुनासिब वक्त पर धमाकों की वजूहात इफ़शा करेंगी। वज़ीर ख़ारिजा मौलूद चावुशओगलू ने सदर एर्दोगान की जानिब से कोरोना वबा के बायस मुसाफ़ा करने के बजाय हाथ को छाती पर रखते हुए दिली सलाम पेश करने के अमल को अब बिलमुशाफ़ा सिफारती मुलाकातों में भी अपनाए जाने के हवाले से एक वीडियो रिकॉर्डिंग को नशर किया है। मौलूद चावुशओगलू ने दफ्तर ख़ारिजा के प्रेस सेक्रेटरी की सोशल मीडिया टीम की जानिब से तैयार करदा इस वीडियो को दिली सलाम की बदौलत हमने पूरी दुनिया के साथ दिली रवाबित कायम किए हैं उन्वान के साथ ट्विटर पर जारी कर दिया गया है। ख्याल रहे कि तुर्क सदर ने एक रोज़ा उमूरा दौरे के दायरेकार में 9 मार्च को बेल्जियम दारुल-हुकूमत ब्रसेल्स में मुज़ाकरात किए थे। जनाब एर्दोगान की नेटो की सेक्रेटरी जनरल नेज़ा स्टोल्टनबर्ग ने मुलाकात के बाद मुसाफा करने के बजाय हाथ को छाती पर रखते हुए कोरोना कहा था, जिस पर स्टोल्टनबर्ग ने भी जवाबन अपनी छाती पर हाथ रखते हुए सलाम पेश किया था। तालिबान ने अफ़गान सूबे गज़नी के कस्बे में बम हमला किया है, जिसमें 3 हिफाजती अहलकार हलाक हो गए हैं। सूबाई इंतज़ामिया के तर्जुमान वाहिद अल्लाह जुम्माज़ादा ने बताया है कि शिद्दत पसंदों ने दायक नामे कस्बे में हमला बम से भरी गाड़ी के ज़रिए किया था। इस हमले में 3 हिफाजती अहलकार हलाक और 9 दीगर ज़ख्मी हो गए थे, जिसके बाद हुई झड़प में शिद्दत पसंदों को भी जानी नुकसान उठाना पड़ा था। नाज़रीन, दावा किया गया है कि शिमाली कोरिया के लीडर किम जोंग उन कोमा में चले गए हैं। जनूबी कोरिया के एक सफारतकार ने सनसनीखेज़ दावा किया है। शिमाली कोरिया के सदर किम जोंग उन कोमा में हैं और उनकी बहन शिमाली कोरिया का कंट्रोल संभाल लेंगी। न्यूयॉर्क पोस्ट ने जनूबी कोरियाई मीडिया के हवाले से बताया कि चांग सोंग मन, जो जनूबी कोरिया के मरहूम सदर किम दाजंग के एक साबिक मुआविन हैं, उन्होंने दावा किया है कि अपने रहनुमा की बिगड़ती हुई सेहत के बारे में सच्चाई छुपाई जा रही है और किम जोंग उन इस वक्त वो बदहाल हैं। नाज़रीन, तुर्क तहकीक बहरी जहाज़ औरच रईस की उमूरी सरगर्मियाँ 27 अगस्त तक बढ़ा दी गई हैं। 4 रोज़ की इस तोसी के साथ औरच रईस, अतामान और चंगेज़ खान नामी बहरी जहाज़ों के हमरा मशरिक़ बहर रूम में जज़ीरे क़ब्रस के करीब कुदरती वसाइल की तलाश जारी रखेगा। ये बहरी जहाज़ जहाँ समंदर में कुदरती वसाइल की तलाश समेत हर किस्म की अर्जियाती, जियोफिज़िक, हाइड्रोग्राफिक और ओशनोग्राफिक तहक़ीक़ करने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन, यमनी फ़ौज ने अल-हदीदा शहर में हुई झड़प के दौरान 5 हूसी बागियों को हलाक करने का दावा किया है। फ़ौज से वाबस्ता एक ब्रिगेड के प्रेस दफ्तर के मुताबिक अल-हदीदा के जनूबी कस्बे तहीता में सरकारी फ़ौज के बाज़ ठिकानों में दाखिले की कोशिश में मसरूफ़ हूसी बागियों और फ़ौज के दरमियान झड़प हुई, जिसमें 5 बागी हलाक हो गए। नाज़रीन, इसराइली जालिम जंगी तैयारों ने गज़ा में हमास के बाज़ ठिकानों पर बमबारी का सिलसिला लगातार जारी रखे हुए, जिसकी वजह से आम लोग भी इस वक्त हदफ बनाए जा रहे हैं। इसराइली फ़ौज के मुताबिक इसके जंगी तैयारों ने हमास की एक सुरंग और बाज़ फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइली फ़ौज का यह भी कहना है कि कार्रवाई गज़ा की तरफ से हीलियम गैस से भरे आतिशगीर गुब्बारे इसराइल भेजने के जवाब में की गई है।
ناظرین یہ تھی آج کی کچھ تازہ ترین خبریں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی رہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات